ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں ابھی تک کیمرہ آن تو نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں مجھے بتائیں گھاس کسی نے کاٹا ہے کبھی؟ بچو جی بہت کھاتا ہے کرانٹی کے دام کس پاس ہے؟ کہڑے پاس ہے؟ ایک پاس میں دور سے چھپ رہی ہوں نہ مڑا خیر یہ بس لوگوں کو پتا ہے میں ہی ہوں اور کون ہوگا پاگل. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالہ جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے 300 میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں. ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے، اور ہم جو ان کے جانثار یہاں پہ کھڑے ہیں، عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جا رہی، اور وجہ کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں اس پابندی کی مذمت کرتے ہیں. یہ پابندی، یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی مطلب پابندی انہوں نے ڈکلیئر کی ہے. اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے. اس وقت اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلایا کہ یہاں پہ آ کے ہم سے بات کرے اور بتائے، اور وہ بھاگ گیا. کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے. ان کو ہم لوگ قومی اسمبلی میں بلائیں گے. ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے. پنجاب اسمبلی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اس پہ ہم لوگ اڈیالہ جیل کی جو اخراجات ہیں، جو افسران کی کرپشن ہے، اس کی جانچ پڑتال کرائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کورٹ کے آرڈرز، فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے کورٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد، محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا تو غالباً 25,000 روپے کیا جرمانہ؟ 25,000 روپے جرمانہ انہوں نے عائد کرنا ہوگا جیل کے حکام نے. انہوں نے یہ پابندی 2 ہفتوں کے لیے لگائی ہے. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا، اس کو شرم آنی چاہیے. وزیر اعلیٰ، سو کالڈ وزیر اعلیٰ، غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ اس کے واچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے. جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ محسن نقوی، جو کہ قاتل ہے پنجاب کا، اس کے واچ پہ یہ کام ہو رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے، میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی، اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لا، کہاں پہ گیا میرٹ، کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالادستی. یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالادستی اور عدالتوں کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا، ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے، پر نہیں ملنے دیا جا رہا. ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے.
हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग आंखों से देखना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू ना कर सके। इंशाअल्लाह ताला हमारे सेनेटर्स आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला जीत के दिखाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में बदकिस्मती के साथ लेन देन के बाजार जो है वो मुख्तलिफ जगहों में गर्म रहा है, मुख्तलिफ सूबाई असम्बली में। वो सब ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरान जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे मेंबर सूबाई असम्बली हो गए या कौमी असम्बली हो गए, वो एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं और वो इमरान खान साहब की कॉल पे लबैक कहेंगे और हमारे जो नुमाइंदा होंगे सेनेट को के उन पे इंशाअल्लाह ताला वो मोहर लगा के उनको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। या इस तरह की गलती उन्होंने की तो वो आग से ही हुकूमत खेल रही होगी। अभी सितम ज़रीफी पाकिस्तान में ये है कि सदर हाउस में जिस्मानी तौर पे एक मफलूज सदर को उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे बिठा दिया, जो कि फंक्शन कर ही नहीं सकता बदकिस्मती से। दूसरी तरफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे एक वजीर आजम और उसकी काबीना को बिठाया गया है जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, जो कि फॉर्म 47 का मैंडेट चुरा के उधर आए हैं, जो पाकिस्तान की अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। और इस काबीना की मिसाल मरकजी हुकूमत में, चाहे वो पंजाब में हो, उनकी ये मिसाल है 0 जमा 0 जमा 0, यानी कि 0 जमा 0 जमा 0 ज़रबे 0 तकसीम 0 करें तो उसका जवाब आपको 0 ही आएगा। है टोटल 0। महंगाई का हाल देख लें, रमजान शुरू है, सारी कौम को पहला रोजा मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाएं और आपके दर्जात बुलंद करें। पर आज के दिन में जो महंगाई हो रही है, आप रेट देख लें। इस वक्त रस्ते से मैं बाजार से आ रहा था, 400 रुपए किलो मुर्गी का रेट है। प्याज जो तकरीबन 350 रुपए से ज्यादा हो रहा था किलो। अभी मैं बाजारों में यही रेट देख के आ रहा था। एक मेहनत का शख्स किस तरह गुजारा करेगा? और बिजली के रेट इस गर्मियों में आप याद रखिएगा, 95 रुपए से लेके 100 रुपए यूनिट तक ये बिजली पहुंचेगी और ऊपर से लोड शेडिंग होगी। और इसका मुआवजा कर लें, आज से 2.5 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपए यूनिट थी बिजली। साहब ये बताइएगा कि आप कौमी असेंबली में हैं, अपोजिशन को आप लीड भी करेंगे, तो ये बताएं कि आपका फोकस दाखिली है या जो इस वक्त आवाम महंगाई में पिस रही है या जो मजीद टैक्सेस लगाने जा रही है हुकूमत, आपका ये प्रायोरिटी है या आपकी प्रायोरिटी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही वो प्रायोरिटी है, अवाम ही हमारी प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से हमने IMF को खत लिखा कि ये चोर यहाँ पे बैठे हुए हैं और आलमी बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और IMF का जो कर्जा आ रहा है, हमें यही अंदेशा है कि ये चोर जो है इस अमाउंट को, इस रकम को हड़प कर जाएंगे। इनकी पेट में जितनी ये रकम है ये इधर उधर खुर्द-बुर्द हो जाएगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इससे महरूम होगी, इससे मुस्तफीद नहीं हो सकेगी। कर्जा भी हमें चढ़ेगा और फायदा भी नहीं होगा। इसी वजह से हमने कहा कि इस पे एक मजबूत हुकूमत आनी चाहिए, जिसकी क़यादत वजीर आजम इमरान खान साहब कर सकते हैं, जो कि एक एक पाई जो है सही अंदाज में पाकिस्तान की अवाम को वो फायदा उठा के दे सकते हैं। और हमारा ये काम होगा कि इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर कड़ी नजर भी रखेंगे और इनका एहतसाब भी करेंगे। IMF को जो आपने खत लिखा था, उन्होंने जो आपको जवाब दिया है, वो कोई आपकी तौक़ात के बरअक्स तो नहीं है? IMF एक आलमी इदारा है और उसके मुताबिक
वो अपना खत लिखते जाएंगे। हमारा काम अपनी आवाम के साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो है, और वो किया गया वादा ये है कि हम लोग हकीकी आज़ादी के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी जिन जिन असेंबलियों में हमें मुंतखब किया गया, और वो पाकिस्तान की सब असेंबलियों में है। सिर्फ कौमी असेंबली की बात करूं, 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप मखसूस नशस्तें उसमें करें 245 बनती हैं। पंजाब में भी हमारी हुकूमत बन सकती थी, बलोचिस्तान में भी, केपी में हमारी बन गई है, और सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। IMF ने जो आपको जवाब दिया है, क्या वो इस बात का नतीजा नहीं जो आपने IMF के साथ वायदा तोड़ा था आपकी हुकूमत ने? बिल्कुल नहीं, वो टोटल सेपरेट था, आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। हमारे दौर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे थे, हमारे दौर में पावर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ रही थी, सारे सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आ रही थी। इन लोगों ने आके उसका बेड़ा गर्क किया, चाहे वो PDM2 की हुकूमत हो, चाहे वो आपकी उसकी एक्सटेंशन निगरान हुकूमत हो। आप रुपए की कदर कीमत देखें, आप डीजल और पेट्रोल की कीमतें देखें, आप बिजली और गैस की कीमतें देखें, आप अफराद ज़र देखें, आप पाकिस्तान की एक बढ़ती हुई मईशत 6% के तनासब से बढ़ रही थी GDP, उसका इन्होंने बेड़ा गर्क किया, और उसको ब्रेकें लगा के वो बजाय इसके कि वो बढ़े, वो सुकड़ दी गई है, और इस वक्त भी सुकड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप साथियों का। अस्सलाम वालेकुम।